ionic equilibrium. So what we have done is I have given you some definition of acid and base, and is it possible that uh, if certain compound is Arrhenius acid, then it's not necessary that it is going to be uh, Bronsted acid also. It could be Bronsted base. So we have seen in this H2SO4 HNO3. HNO3 is Arrhenius acid, but at that time that is accepting H plus. So we are starting with the last definition, that is Lewis definition. So Lewis definition is very simple. So it is based on, let's say, if something is accepting or donating lone pairs. So acid is nothing but electron pair. So these electron pair can be lone pair. So this definition you are going to see in organic chemistry also. So it could be lone pair or pi bond. Could be anything. So pi electrons mainly. Pi electrons accept. Okay. So these are going to be acids. So examples are, on necessary condition I have already told you. If you want to have, let's say, electrons, then what is going to be required, that is a vacant orbital. Necessary condition is presence of vacant orbital. So in brief, I have told you that all the metal ions, transition metal ions in complex compounds, okay, are accepting electron pairs from ligands. So all those transition metal ions are Lewis acids. ठीक है, ये बात हम शायद पहले बता चुके हैं. Yes, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं. ठीक है, so this is also called as, these can also be called as electrophiles. But there is a difference. Electrophile can accept single electron also. Electrophile means electron lover. Okay, phile is the word is for lover, right? So electrophile is electron lover, and so electron lover means all these Lewis acid, as well as somewhere when we can have only one electron. Let's say in case of free radical. Free radical means CH3, है ना, free radical. So it is short by one electron. So it is also considered as electrophile, but it is not a Lewis acid. So this is the difference, minute difference, that electrophile is a bigger set and the Lewis acids are subset of that. Okay, so you can write electrophile also. But what is the difference? You know, why we are using two different words for the same thing? So that is what I am telling you. There is a minute difference. Okay. So Lewis acid means it is going to accept an electron pair, not only electron. And electrophile can accept electron also. Okay, so example, you can say examples are all transition metals. Metals in transition metals and metal ion. कहाँ पे देखा है ना? Example is metal complex. Let's say we can write K4 FeCN6. So here this Fe2 plus is Lewis acid. Okay, so this is just one example. Another, let's say, example, what we can say over here is
compounds which are having one vacant orbital, है ना? Some other example, let's say you can say compounds of boron, so beryllium, boron, aluminium, है ना? All these are having one vacant orbital, at least one vacant orbital, ठीक है? So you can say जैसे example BeCl2, है ना? BF3, AlCl3, etc. So Tapan, whatever I am teaching right now, उस पे focus करो. We will come to neutralization little bit later. So like wherever you are going to see electron deficient species, right, that is going to behave as Lewis acid. जैसे H plus है ना? अगर if I have written, let's say one example, I have written H plus H2O is going to give us H3O plus, let's say. So here what is happening? H2O is donating electron to H plus, right? So that means this H plus is Lewis acid, and this water is going to be Lewis base. So whenever this donation will happen, one is going to be accepting electron, another one is going to donating electron, and that's why you can apply the Lewis definition to a lot of reaction. Now, what is the difference between neutralization and normal? Let's say over here we are seeing, see, neutralization reaction which we are seeing in water. So that is Arrhenius, let's say based on Arrhenius acid base definition. Okay. Where we are saying that H plus is combining with OH minus to form H2O, right? Not here. In all those cases, we are not saying that. क्योंकि फिर तो ऐसे कोई भी रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन ही हो जाएगी, राइट? सो नो, that is strictly based on Arrhenius definition, neutralization part. समझ में आया? और ये these are very common reactions. Let's say I will give you one more example, which we are going to see in, let's say, organic chemistry. जैसे अगर मैंने I told you this is benzene, nitration of benzene, and this is NO2 plus. So it is electron deficient. Benzene is not having any electron, lone pair, but it is having pi electrons. Right? All these carbons are having pi electrons. Okay? So what these pi electrons are doing is they are donating electrons to NO2. Okay? These are donating electrons to NO2. So here, this flow, this arrow always tells us, whenever you are going to see in organic chemistry, whenever sir is going to draw arrow, है ना, जब mechanism start होगा तब. So always remember this is the let's say this is telling you the path of electrons, है ना, कैसे electron जो है ना वो transfer हो रहे हैं. Anyway, so this electron pair are going to, let's say, given to NO2 plus, and then what is going to happen is in this reaction, so it is going to be like this, this pi bond is going to broken. So let's say this carbon says to this carbon, he give me the electrons, right? So there are two carbons and between them there is a pi bond. So what is happening is we are breaking this pi bond. We are giving this pi electrons to NO2. So it is giving like this. This is minus and this is plus. Okay? So I have broken, like, just to understand. Okay? So this minus, this electrons have been given to NO2. So ये neutral हो गया. Minus has given electron to NO2. So this has been neutral.
and the positive charge will appear here. So what I have did, okay? So when this carbon is going to give electrons to NO2, what will happen? You know, between these two carbon, one carbon is going to form the bond, another one carbon will be having positive charge. Now, और यू कैन अंडरस्टैंड कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज बैलेंस भी यू कैन चेक, है ना, न्यूट्रल और प्लस है तो एक पॉजिटिव यहाँ पे आना ही है, राइट? व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, विच आई हैव नॉट ड्रॉन बिकॉज दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ओके, सो वी डोंट ड्रॉ हाइड्रोजन. At every carbon there is going to be one hydrogen, so there is one hydrogen. So what is happening, we are saying that this bond is going to break, you know, and this is going to leave as, you know, removal of H plus ion. What is going to left over here? Minus. What is going to left over here? Minus. So then it is minus and plus is again going to form double bond. This is called nitration of benzene. But the thing is, what we are understanding is here this benzene is donating pi electrons. Yeah. So here donation of pi electron is happening. So is the reaction feasible? Yes, this reaction happens. It is called electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. One electrophile is substituting another electrophile. ये H plus क्या है? ये भी electrophile है. So NO2 is replacing H plus. So that is substitution. Electrophilic substitution reaction. ठीक है? Anyway, so over here this is going to be Lewis base. And this is going to be Lewis acid. So Lewis acid base definition is very simple. अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो पक्का है ही है, राइट? पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, राइट? तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो तो लुईस एसिड है ही है. और कहीं पे अगर वो न्यूट्रल है, राइट, एंड देन यू आर चेकिंग, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, राइट, काइंड ऑफ. So you cannot identify feasibility. अभी नहीं कर सकते, हम उसमें जा भी नहीं रहे हैं, है ना, we are not thinking about it. Carbocation is intermediate, yes. ठीक है, चलो ये तो हो गया लुईस एसिड, लुईस बेस. So Lewis base is going to be what we are going to say, that is electron pair donor. You know, example we can write NH3 H2O C2H4 benzene, right? Anywhere, etc. If it is having electron pair donor, so electron pair can be lone pair or pi electrons. These are also called as nucleophile. Nucleophile is nothing but nucleus lover. Nucleus is having positive charge, that's why nucleophile, which is going to attract towards positive center. ठीक है, which is going to attract towards positive center, that is Lewis base. Okay, so that is the definition of Lewis and acid and base, Lewis acid and Lewis base definition. Now let's move on to some other things. Okay, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, देख लिया सबने. Nucleophile, electrophile, you will be able to understand. Nucleophile is going to be Lewis base, and electrophile is going to be Lewis acid. Electrophile means electron lover, so it should be having positive charge. Nucleophile is nucleus lover, so that is going to be have negative charge. Then it is going to attract towards positive charge. So positive attracts negative, negative attracts positive. So this is the basic thing. If you are able to understand is Lewis H2O is not, हाँ ये मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया था, नोट है ना. Let's say H2O is Arrhenius acid and base, है ना, Bronsted acid and base, but only Lewis acid, sorry, Lewis base.
ठीक है, because H2O is not having vacant orbital, so it cannot accept, there is no vacant orbital, it cannot accept lone pairs. ये क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकता, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, मान लो ये रिएक्शन लिखी है, ओके। नाउ यू हैव टू टेल मी what type of acid base are there, है ना, इनके तीनों एसिड और बेस बताओ। ओवर हियर यू हैव टू से अरीनियस एसिड है या नहीं है, लुइस एसिड है या नहीं है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है या नहीं है, सो यू हैव टू राइट फास्ट फास्ट फास्ट। बताओ, ये एक भी डाउट, एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। अरे तीनों डेफिनेशन बतानी है। सो लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स से मैं इसके लिए बता रहा हूँ, HI is over here is giving H plus ion in this reaction, so it is Arrhenius acid. It is, if it is Arrhenius acid, then over here it is Bronsted acid because H plus ion की बात दोनों जगह सही है। But whether the HI is accepting lone pair or H plus is accepting lone pair, H plus is accepting lone pair, ठीक है, because this is breaking into ions, so it is not Lewis acid, ठीक है ना, H plus is Lewis acid. Okay, what is going to be open over here? Whether this is giving OH minus ion? No, it is not giving OH minus ion. So it is not Arrhenius base. Whether it is accepting H plus ion? Yes, it is accepting H plus ion. So it is Bronsted base. So, and this is also Lewis base because it is how it is accepting H plus ion. It is having lone pair. It is giving to H plus ion. So it is also a Lewis base. So this is what you have to tell. Okay, so this is that's it. That's the acid and base. Now, next thing we are going to understand Ostwald's dilution law. So Ostwald was the first scientist who said that we can apply law of mass action or equilibrium concept for
let's say for electrolytic solutions, but which electrolytic solution? Weak electrolytic solution. Okay, so we can write Ostwald was first to identify that law of mass action. Mass action का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट. Can be applied in weak electrolytic solution. ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये बात बोली. तो you can understand weak electrolytic solution means weak acid and weak base mainly. So let's say we are going to understand it. Example, let's say assume AB is weak electrolyte. ठीक है, या फिर let's say I'm just writing HA, है ना. I'm taking example is HA, that is representation of acid. HA is weak electrolyte. So how it is going to break HA? Then it is not going to be 100% is going to break into ions. So partial dissociation will happen. So that's why we get H plus and A minus. Okay. Now let's say at T equals to 0, the concentration is given as C. So initially there is no let's say dissociation, है ना. Let's just assume कि ये container है, उसमें एक पानी है और आपने ये weak electrolyte इसमें just अभी ना ये डाला है H. ठीक है, राइट, ओवर हियर. तो उसके कारण कुछ C कंसंट्रेशन बनेगी H की. नाउ ये इट स्टार्टेड टू डिसोसिएट. ठीक है, सो एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, जैसे हम x A मोल्स लिखते थे ना, वैसे यहाँ पे जनरली टर्म्स मोल्स की जगह हम सीधे कंसंट्रेशन से रिलेट करेंगे. विल नॉट राइट मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वी विल डायरेक्टली राइट कंसंट्रेशन. ठीक है, इन दिस चैप्टर. तो थोड़ी सी चीजें आसान रहेगी. इतनी बात समझ में आ रही है. C रिप्रेजेंट फॉर कंसंट्रेशन. C इज कंसंट्रेशन ऑफ HA. कोई बात कहीं भी नहीं समझ में आए, आराम से पूछो बिंदास होके. और कल बहुत सारे लोग नहीं आए थे, मैं रिवीजन करा रहा हूँ और आप लोग आ नहीं रहे हो. अभी भी काफी लोग नहीं है. क्या स्ट्रेंथ है? पहली क्लास में कितने लोग थे? देख 140, 160, 144, 147, है ना. राइट नाउ वी आर हैविंग 130. ठीक है. So anyway, so at T equilibrium, what will happen? We have learned the concept of degree of dissociation, right? So when we are used to have A, then we will say A minus X, and then we will say X is nothing but degree of dissociation. Alpha is number of dissociated moles divided by initial moles taken. So we will write alpha is nothing but X by A. So X is nothing but A by alpha, right? So if we are going to write A by B is C, so we can write C alpha directly, है ना, concentration. So I'm writing here C minus C alpha. ठीक है, ये we are used to it A, फिर A minus X लिखते थे. X क्या है यहाँ पे? अगर alpha is nothing but degree of dissociation, which is nothing but dissociated moles divided by initial moles taken. How many moles have been dissociated divided by initial moles taken? Then you can write X is nothing but A alpha. और A alpha को अगर हम concentration के terms में लिखेंगे तो ये A by V C alpha. So I'm directly writing C alpha is going to
let's say concentration is going to decrease. You know? So what will happen over here? This is going to form C alpha and this is going to form C alpha. Now we are applying a law of mass action. So from law of mass action, you know, this reaction, for this reaction we are writing dissociation constant or equilibrium constant is Ka, A for acid, right? So Ka is going to be product H plus A minus divided by J. So we'll write the value activity of all those. So H plus की activity होगी C alpha, A minus की activity C alpha divided by HA is nothing but, if you are going to take C is common, so this is 1 minus alpha. So this is nothing but C square alpha square divided by C1 minus alpha, or you can say A is nothing but C कट जाएगा यहाँ से. So this is C alpha square divided by 1 minus alpha. Now here we are going to use approximation. Generally, alpha is less than 0.1. ठीक है? And है ना? And if alpha is less than 0.1, we will neglect it. So what we are writing is alpha की वैल्यू बहुत कम होती है, जनरली 0.1 से भी कम होती है. 0.1 का मतलब 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मैं पहले बता चुका हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन के टाइम पे. ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि इसकी जो भी है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो काफी कम है, and we can neglect 1 minus alpha. We can write like is approximately equals to 1. So hence we can write A is nothing but C alpha square. And another thing is, or you can write, or alpha is nothing but under root Ka by C. So these are two important formulas. Yeah. अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? Since the concentration of H plus ion या फिर जो भी ions हैं A minus ion, इनकी concentration क्या है? What is the concentration of H plus and A minus ion? So H plus ion concentration is nothing but C alpha. So we will write alpha is under root K by C. So this is C into under root K by C, or you can say under root K dot C. Yeah. So on A minus ion की, similarly A minus ion की concentration, you can write C alpha, which is nothing but C under root K by C. That is under root K dot C. So these are formulas. Ions की concentration हमें पता है. We have what is alpha. All those things we know. इसको लिख लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ. Right? What we have done is ये HA को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया एसिड का ही. HA को हमने ब्रेक कर लिया H plus A minus में. So assume it कि जैसे मान लो एसिटिक एसिड आपने पानी में डाला, 1 मोल डाला, let's say, तो उसका केवल कुछ पार्ट ही, मतलब बहुत कम पार्ट ही आयंस में टूटेगा. Now you want to check what is the H plus ion concentration in water, what is the acetate ion concentration in water. So how you are going to solve it? By this formula C alpha, right? And in this case, what we can also say is what is the degree of dissociation. Degree of dissociation is going to be under root K by C, and then you can
solve it, alpha is going to be under root k by c. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से और सीख सकते हैं, ठीक है? वो क्या है इंपॉर्टेंट बात, क्या सीख सकते हैं कि देखो ये जो अल्फा है ना वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरह से। तो अगर मान लो कंसंट्रेशन घटेगी, है ना, तो अल्फा बढ़ेगा। मतलब अगर मैंने 1 मोल 1 लीटर पानी में डाला, 1 मोल एसिटिक एसिड का 1 लीटर पानी में डाला और 1 मोल 10 लीटर में डाला, ठीक है? तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब जो 1 मोल था, मान लो पहले वो केवल 0.1 ही टूट रहा था, तो जब मैं 10 लीटर में डालूंगा, मैंने कंसंट्रेशन कम कर दी है, राइट? तो वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स टूट रहे होंगे वो 0.2 हो सकते हैं, 0.3 हो सकते हैं। सो अल्फा इज गोइंग टू इंक्रीज। You can understand this? If concentration is going to decrease, then alpha is going to increase. So we can say, hence, on dilution, C is going to decrease, alpha is going to increase, ठीक है? And what about C alpha? C alpha, yeah, or you can say concentration of ion. Decreases, ठीक है? So what will happen? Because volume जो बढ़ाएंगे ना, उसके कारण कंसंट्रेशन में डिक्रीज ज्यादा है ना? So concentration of H plus ion is also going to decrease. अल्फा इतना नहीं बढ़ा जितना कंसंट्रेशन कम हो गई. So that is what is going to happen. और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं. Let's say K is nothing but C alpha dot alpha, ऐसे भी समझ लो. अब आपको ये बात तो पता है अल्फा बढ़ रहा है, K कांस्टेंट है, तो C alpha को क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा, just to make it constant. So that's why C alpha is going to decrease, right? So on dilution, it is going to happen. Another thing we can write, note, at infinite dilution, मतलब 1 मोल को पता चला मैंने 10⁻⁶ और 10⁻⁷ लीटर्स वाटर में डाल दिया, है ना? So it is sufficiently large, right? So at infinite dilution, the C tending to 0, and if concentration is tending to 0, then alpha is going to, है ना, alpha is going to be 1. So that means 100% dissociation. ठीक है, तो अगर हम पानी डालते रहेंगे तो अल्फा बढ़ता रहेगा, एक पॉइंट पे जाके वो 100% डिसोसिएशन की तरफ जाने लग जाएगा. और जिस पॉइंट पे 100% डिसोसिएशन की तरफ जाने लग जाएगा, देन वी कैन से weak electrolyte, hence weak electrolyte at infinite dilution can behave as strong electrolyte. ठीक है, तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डाइल्यूशन दे रखा है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे 100% डिसोसिएशन हो जा रहा है, और 100% अप्रोक्सीमेटली 100%, एग्जैक्ट 100 तो नहीं होगा, 99 98 ऐसा कुछ हो रहा होगा. सो वी कैन से इट इज बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट.
ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? सर इसी को मोल से करेंगे चैप्टर में तो सही नहीं होगा क्या वो, मतलब? थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन के टर्म में रखेंगे क्योंकि आयंस है ना, तो आयंस की कंसंट्रेशन ही आएगी। सर ठीक है ठीक है, सर। वो सेम है, मतलब जैसे प्रेशर लिखते थे ना, यस सर। गैस के लिए प्रेशर लिख देते थे, यस यहाँ सर। पे हम कंसंट्रेशन लिख दे रहे हैं, बस इतना ही है। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। चलो, तो लेट्स से नेक्स्ट, इसमें फिर हम ये अल्फा और है ना कंसंट्रेशन का एक ग्राफ भी बना सकते हैं। So alpha, this is 1 and this is 0.1. Kind of. So it is going to be increasing very rapidly as the concentration is decreasing, right? After some time क्या होगा, जब ये 0.9 के आसपास होगी तो फिर उतना जल्दी नहीं होगा, है ना? So it is going to be like this. This is alpha. Now next is common ion effect. कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है कि इफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, and among them one is going to be weak, another one could be weak or strong, doesn't matter, ठीक है. So if in these two electrolyte any one ion is a common ion, then what will happen? ठीक है, common ion effect का मतलब क्या है? If two electrolytes are present in solution having at least one common ion, let's say example, है ना? What is going to be, let's say example is, let's say I am writing HCN plus HCl. So this is weak acid, this is strong acid. Not simultaneous equilibrium because HCl is not going into equilibrium, strong electrolyte, right? So there is no equilibrium. But yes, अगर हम कोई weak electrolyte ले लेते तो थोड़ा सा difficult हो जाता समझाना, तब वहां पे simultaneous equilibrium आ जाता, जैसे CH3 COOH ले लें तो वहां पे भी एक कॉमन आयन है H प्लस आयन, दो एसिड है, राइट? तो क्या होगा यहाँ पे, what is the addition of HCl is causing to the equilibrium? The thing is what we have to understand कि HCl के आने से क्या हो जाएगा equilibrium में, ठीक है? So what will happen if we are adding 1 molar solution of HCl into 0.1 molar HCN solution, let's say, ठीक है? So this is what we want to understand कि क्या होगा ऐसा कि HCl के डालने से HCN का जो solution है उसमें क्या होगा, ठीक है? So that is common ion effect we are going to understand. Let's understand क्या होगा. Let's say K of HCN is given. K of HCN is, let's say, for the simplicity I am writing 10 to the minus 10.
ठीक है, I'm not writing here 2 3 something, so that's a 10 to the power minus 10. It is given. Now assume that if there is no HCl is present, let's assume if there is no HCl is present, or you can say there is only HCN is present. If only HCN is present, so then it is going to break. HCN is going to break is like this: H plus plus Cn minus. What is going to be, let's say, alpha and all those concentrations? So H plus ion concentration, alpha is going to be, alpha will be, let's say 10 to the minus 11 लिख ले रहे हैं इसको थोड़ा simple. Alpha is going to be under root k by c. So that is nothing but under root k is 10 to the minus 11 and c is nothing but 0.1 HCN. So 10 to 0.1 is nothing but 10 to the minus 1. So this is under root 10 to the minus 10. Or you can say 10 to the minus 5. See, you can see alpha is very, very less. So that's why what we had thought we can neglect alpha. तो अगर यहाँ से वैल्यू अल्फा की आती है 0.1 से कम, then we will say कि हमारा अप्रोक्सीमेशन सही था, हमने जो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 लिखा था वो बात सही है. एंड यू कैन सी हियर आल्सो कि ये 10 to the minus 5 आ रहा है, तो ये 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है. एंड वी कैन से ओके, और assumption is correct. Now alpha is going to be 10 to the minus 5. What is going to be, let's say, H plus ion concentration and Cn minus ion concentration. So that is C alpha. So 0.1 into 10 to the minus 5. So this is 10 to the minus 6. Now Cn minus ion concentration is also C alpha. It is nothing but 10 to the minus 6. क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम, ये हमने सब बता दिया कि भाई कितना H प्लस होगा, कितना Cn minus होगा, क्या अल्फा होगा. We have already calculated everything. Now let's say now we are adding HCl into it. Adding HCl to this equilibrium. So when we are adding HCl, HCl is going to provide H plus ion. So what will happen? Reaction will shift towards backward direction. Reaction will shift towards backward direction. अच्छा बताओ, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी? कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी? इंक्रीजेस, है ना, क्योंकि हमने HCl भी तो डाला है. HCl से H प्लस आ रहा है ना, दो इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बट व्हाट हैपेंड, आपने HCl डाला उसके कारण बढ़ गई. और जो अनकॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ी या घटी? डिक्रीजेस, है ना, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि Cn तो कहीं से नहीं आ रहा है. अगर रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, द कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन विल डिक्रीज. तो ये हम एक पॉइंट है, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है. सो व्हाट इज वी आर गोइंग टू रिमेंबर इज कि जो प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन के कारण क्या होता है कि जो अनकॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है. रिएक्शन इज शिफ्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अनकॉमन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी. एक बात ये. दूसरा, व्हाट अबाउट अल्फा? मान लो पहले इक्विलिब्रियम, मान लो जस्ट इमेजिन पहले इक्विलिब्रियम अल्फा आपका लेट्स से 10% था, लेट्स से जस्ट अज्यूम. तो पहले इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन पहले 10% आगे की तरफ जा रही थी. जैसे ही आपने उसमें कॉमन आयन डाला, रिएक्शन पीछे की तरफ चली गई, मतलब नेट जो था वो अब हो सकता है 5% हो, राइट, आगे की तरफ. इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा अब क्या हुआ, अल्फा डिक्रीजेस. ये बात समझ में आ रही है? किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही, देन से यस. ठीक है, फिर से समझ लेते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लो जस्ट अज्यूम कि मान लो पहले 10% था, इसका मतलब क्या है, 10% टूट रहा है ना. इसका मतलब रिएक्शन इज शिफ्टिंग 10% इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. व्हेन यू हैव एडेड
है ना. When you have added common ion, what happened is reaction shifted in backward direction. So when the reaction will be shifted in backward direction, तो वो 10 से तो कम हो जाएगा. तो लेट्स से अगर 5 है तो क्या हुआ, अल्फा अब या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बस 5% ही है. इसका मतलब है पहले 10 था, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज डिक्रीजेस. सो वी आर गोइंग टू राइट इट, वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, है ना. ये एक एग्जांपल है, इससे हम समझ रहे हैं दो बातें. एक तो कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन इज गोइंग टू डिक्रीज एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गोइंग टू डिक्रीज. वो हम नोट्स में लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में. वी आर एडिंग HCl टू दिस इक्विलिब्रियम. अब क्या हुआ, अब लगा देंगे HCN H plus plus Cn minus. So we will assume at t equals to 0, मान लो ये ब्रेक होना स्टार्ट नहीं हुआ है. So that is C over here, that is 0.1. यहाँ से ये कितना है HCl तो पूरा पूरा टूट जाएगा. That is H plus plus Cl minus. So this is going to be, अगर ये 1 मोलर था तो ये 0 0, ये 0, ये 1, ये 1, 100% टूट गया. तो 100% टूटने के कारण ही H प्लस कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और ये 0. अब क्या होगा t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे, दिस इज 0.1 1 माइनस अल्फा अल्फा डैश लेट्स से. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 अल्फा डैश एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 0.1 अल्फा डैश. सी अल्फा लिखा हुआ है. यू कैन सी कि अल्फा ऑलरेडी बहुत कम है तो अल्फा डैश तो इससे भी कम होने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट इक्वल्स टू 1. Now what is going to be k, and this is again alpha dash is going to be very less, so we have used approximation, so this is going to be 0.1 according to approximation. This is approximation we are saying ki alpha dash is going to be very less, so we are adding 1 and we are saying ki 1 plus 0.1 alpha dash is also going to be 1. Okay, now you can apply a. A is nothing but H plus ion concentration, Cn minus ion concentration divided by HCN. So that is 10 to the minus 11. Let's say H plus ion concentration is now 1. Cn minus ion concentration is 0.1 alpha dash. HCN ion concentration is 0.1. So this is going to cut. So alpha dash is nothing but 10 to the minus 11. So now you can see the concentration, because of this common ion effect, concentration or the degree of dissociation has decreases rapidly from 10 to the minus 5 to 10 to the minus 11. है ना. concentration of Cn minus क्या हो जाएगा यहाँ पे अब, है ना. concentration of Cn minus is going to be C alpha dash, which is 0.1 into 10 to the minus 11 is 10 to the minus 12. So this from 10 to the minus 6 से ये 10 to the minus 12 हो गया, है ना. अब इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कहीं पे भी हो, जस्ट आस्क. रिएक्शन बैकवर्ड में क्यों जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड में इसलिए जा रहा है क्योंकि हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन पीछे की, है ना. प्रोडक्ट ज्यादा आ गया ना, H प्लस आयन बढ़ा दिया आपने, तो ये है ना रिएक्टेंट बनाने लग जाएगा. इसलिए ली-चैटलेट प्रिंसिपल. तो बस यही हमें करना होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में. दिस इज द बेसिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. हाउ आयनिक इक्विलिब्रियम मींस क्या पूछेंगे, आयंस की कंसंट्रेशन पूछेंगे, पीएच पूछेंगे, राइट. अभी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमें पता है तो हम पीएच बता सकते हैं. ऑल दोस थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क. ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी पूछ लो, जहां पे भी होगा मैं रिपीट करूंगा. अल्फा एक्चुअली है क्या, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मतलब अल्फा को ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पास इनिशियली 1 मोल है, 5 मोल है, 10 मोल है. अल्फा कह रहा है जो भी है उसका कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ. ठीक है,
तो अगर मान लो आपके पास शुरुआत में 5 मोल्स थे और 2 मोल्स डिसोसिएट हो गए, देन यू विल से 40%, 2 डिवाइड बाई 5 है ना, तो 0.4 और परसेंटेज में 40%। अगर आपके पास मान लो 1 मोल था और 0.4 मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो भी अल्फा 40% है, बट ओवर हियर यू कैन सी द number of moles are different, so that's why we are not thinking about कि how many moles initially are. Alpha is a better way to understand कि कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ ना, उसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप मोल्स आ जाएंगे। The conclusion is concentration of CN reduces rapidly, yes, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ हो रहा है, तो क्या होगा, CN माइनस की तो कंसंट्रेशन कम होगी ना पहले से। So write it, है ना, ये तो हो गया एक एग्जांपल जिससे हमने ये समझा है, बट व्हाट इज द कंक्लूजन वी वांट टू राइट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, राइट, नो, due to common ion effect, concentration of uncommon ion decreases as alpha decrease. Alpha decreases. So this is the important point. Concentration of uncommon ion is going to decrease and alpha is going to decrease. So लिख लो एक बार ढंग से अच्छे से। सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स करेंगे तो नहीं चलेगा? Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्यों रिड्यूस होगी भाई, ये बताओ पहले। Cl माइनस कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ सर, करेक्ट। नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, मैं दूसरी का डाउट पूछ रहा हूँ। तुमने क्या पूछा? सर कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्यों नहीं होगा, तो सर वही कि पूरे डिसोसिएट ही हो जाएंगे ना। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरे डिसोसिएट हो जाते हाँ हैं ना सर, उनमें। समझ गया, थैंक यू सर। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी आता है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। कब आता है वो, थोड़ा सा एक्चुअली बहुत हायर कंसंट्रेशन होती है जब, ठीक है, जब बहुत हायर कंसंट्रेशन होती है तब आता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट आई वांट टू से इज, लेट्स से जैसे NaCl है, NaCl पानी में सॉल्युबल है, बहुत अच्छा है, बट ये यहाँ पे नहीं लगना है, ठीक है, जस्ट आई एम सेइंग पानी में सॉल्युबल है और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जहाँ पे जो ये सॉल्ट फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे NaCl को जल्दी से क्रिस्टलाइज करके हमें बनाना है, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं, HCl या फिर कोई भी ऐसा जिसका कोई कॉमन आयन हो वो डाल देंगे उसमें, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो उसकी क्रिस्टलाइजेशन है जो है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट फास्टर। ये हम वेट नहीं कर सकते ना इवेपोरेशन का, तो सॉल्ट उसमें प्रोसेस में होता है, तो कॉमन आयन का इफेक्ट वहां पे भी होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, बट एक बहुत कंसंट्रेशन के ऊपर, नॉट नॉट वेरी लेस, क्योंकि जब अगर आप पानी में सॉल्ट को डालो तो इट इज वेरी हाईली सॉल्युबल, है ना, बहुत सारा नमक डाल दोगे आप थोड़े पानी में, सब पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अच्छा इसको लिखो, एक मिनट।
किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये समझ में आ गया कॉमन आयन। अच्छा, अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आपने एसिड और बेस 10th में पढ़े थे, तो मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उससे उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लेट्स से 10⁻² मोलर है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻1 मोलर है, तो कैन यू से कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है? तो ये आंसर है गलत, है ना? वी कैन नॉट से। मुझे पता था तुम लोग ये बोलोगे। वी कैन नॉट से कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से नहीं बता सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट 10th में पढ़ते हैं, है ना, इजी लैंग्वेज में, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सेम अमाउंट ऑफ एसिड डाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं, है ना? मान लो अगर मैंने 1 मोल डाला और यहाँ पे भी 1 मोल डाला, just by checking the H plus ion concentration I cannot say, but if I am saying कि 1 मोल एसिड से यहाँ 10⁻⁻1 आया और यहाँ पे 1 मोल एसिड से 10⁻2 आया, then I will say 10⁻⁻1 is going to be stronger acid। समझ में आया डिफरेंस, है ना? अभी जैसे अभी इसी क्वेश्चन में आप देखो, है ना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 समथिंग आ रही थी ऊपर, कहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, कहाँ है, कहाँ निकाला था मैंने, कहीं तो निकाला, रुक जाओ एक मिनट, कहाँ पे, ओह सॉरी, तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 आ रही है, सॉरी। क्या मैं HCl के 1 मोल को 10⁻6 लीटर के मैं अगर मिला दूं तो भी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की 10⁻6 आएगी? तो जस्ट बाय चेकिंग द कंसंट्रेशन आई कैन नॉट से, है ना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। बट इफ आई एम सेइंग, इफ आई एम एडिंग द सेम अमाउंट ऑफ एसिड and then I am comparing कि जो भी H plus ion ज्यादा देगा, then I will say that is going to be stronger acid। So this is the little bit tricky part over here, be careful। Now so we are going to understand pH scale and acidity वगैरह। Okay, so let's say acidic nature if sorry, we can say if two acids are given, two acidic solution are given having same concentration, you know, whichever acid gives more H plus ion in water, है ना, that acid is called stronger acid than other acid। So this is what we have to understand। Now how we are going to compare, let's say this is a solution is given, let's say Ha1, and this is given as Ha2, and two acids are given। So what is going to be H plus ion concentration over here? That is nothing but C alpha, and I can say under root K1 dot C, right? अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। And what is going to be H plus ion concentration over here?
that is nothing but C alpha, let's say, and that is under root K dot K2 dot C. C over here is going to be same. So if I have to compare these two acids, right? I can say H plus ion concentration from HA1 divided by H plus ion concentration from HA2. That is nothing but depends on, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट K1 by K2. C तो कट जाएगा. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो आपने एसिड और बेस पढ़ा था उसमें नेचर में K वैल्यू से हम लोग देख लेते थे, राइट? है ना, ऑर्गेनिक में जस्ट बाय चेकिंग द K वैल्यू. तो जिसकी K वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया. यस, सो दैट इज द रूट ऑफ दैट कि हाउ वी आर सेइंग ऑन द K वैल्यू. So hence we can say whichever है ना is having higher K, है ना, और है ना हायर K और लोअर pK, तो इसको अभी बाद में बताएंगे ना. हायर K that is stronger acid. pK पढ़ा है क्या? pK पता है क्या? What is pK? Yes, okay, good. तो फिर आपको पता ही है pH जैसे हम बोल रहे हैं वैसे pK होता है, that is negative logarithm of K. तो अगर K बढ़ रहा है तो pK घटेगा, right? Negative log of K. So we can also write that we can say whichever is higher K, है ना, or lower pK. So you can write it here because you know it. That's why you can write over here. So lower pK, that is stronger acid. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? K pK ये सब, कोई दिक्कत? चलो देखते हैं आयनिक अभी तक कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं ना, मिलते किया सुन लो. ठीक है, तो आयनिक के ये जो पहले के 2-3 चैप्टर लेक्चर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बेसिक बातें कर रहे हैं. एंड अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से नहीं सुने या स्किप कर दिए तो दिक्कत होगी आगे, बिल्कुल डेफिनेटली होगी. क्योंकि जो बात जैसे मैंने अभी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको बताया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है और कैसे हम इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, सी है ना, 0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा. दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल द लेट्स से आगे डेरिवेशन हम करेंगे उन सब में ये सब आएगा ही आएगा. तो अगर आप ये यहीं पे अगर आपने मिस किया और यहाँ पे ये आपको नहीं समझ में आया, या फिर ये कॉमन आयन इफेक्ट है ना, अभी तक बस बेसिक चल रहा है, कुछ हमने नहीं सिखाया. तो आपको यही ध्यान रखना है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट कि आप इसको अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाओ. आयनिक इज कॉल्ड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन द 11th. मतलब जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं उनमें सबसे टफ चैप्टर यही है, मैं डरा नहीं रहा हूँ. लेकिन ये इसमें क्यों टफ है मैं वो भी बता दे रहा हूँ, केसेस बहुत ज्यादा है. सो व्हाट इज द वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सॉल्ट कौन है ना, इतने सारे हैं. अभी कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें एसिड और बेस में ही बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना. उनको यही नहीं पता चलता इसमें वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है. ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे. तो जो लोगों को ये दिक्कतें आती हैं उनके साथ तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता है कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो आपको जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया है बहुत बेसिक है और बहुत आराम से पढ़ाया है मैंने, बहुत मन से पढ़ाया है.
उसको बिल्कुल पकड़ के रखो, है ना, उसको छोड़ने मत दो। अगर कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है देन आस्क। ये 2-3 जो चैप्टर हैं ये बहुत बेसिक हैं, लेक्चर हैं बहुत बेसिक हैं। इनके बाद चीजें जो स्टार्ट होंगी वो थोड़ी सी और डिफिकल्ट होती जाएंगी, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो एनीवे काफी लोगों को समझ में आ रहा है, 10 लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, वो मुझसे पूछ लो। आई डोंट नो हाउ टू रीच यू गाइस। ओके, तो भाई जिनको नहीं आ रहा है, आई हैव ए हम्बल रिक्वेस्ट, पूछते जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाद में बोलेंगे कि बोलते भी हैं, मैंने कई लोगों को सुना है, यार केमिस्ट्री में केमिस्ट्री टीचर क्या पढ़ाते थे कुछ समझ में नहीं आता। सो इफ यू आर गोइंग टू सी दोज काइंड ऑफ पीपल, I just want to change their thinking about chemistry. Anyway, मैथ्स और फिजिक्स तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, इम्पोर्टेंट यही है कि केमिस्ट्री हम उसको कर पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आई हैव नो आइडिया। ओके, कॉमन आयन का मतलब क्या है? इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू सॉल्यूशन, तो जो भी एक आयन जो दोनों में कॉमन है, जैसे HCl और HCN मैंने लिया था, तो H दोनों में कॉमन है तो H प्लस कॉमन आयन हो गया। एंड सिंपल थिंग इज कि अगर आप मान लो कोई इक्विलिब्रियम है, उसमें आप प्रोडक्ट डाल दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या? अनकॉमन आयन जिसका सोर्स केवल HCN ही था, है ना, CN इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम HCN। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई तो CN जो है उसकी कंसंट्रेशन कम ही होने वाली है। ठीक है, थैंक यू जास्करन। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलते हैं आगे। अब चलते हैं पीएच स्केल पे, तो थोड़ा बहुत हमें पता ही है। तो pH scale is defined, which we are saying is 0 to 14, that is defined for water. If we are going to change the solvent, the pH scale is going to change. ठीक है, so pH scale (0 to 14) at 25 degrees Celsius for water. Note, if we are changing temperature or solvent, है ना, pH scale will change. So if somebody is saying whether the pH is can be negative, so yes, it is possible. If somebody is saying whether the pH can be more than 14, yes, it is possible. ठीक है, so there are two important thing. Note another, pH can be negative or can be more than 40. ठीक है, so what we have studied is that is 0 to 14, है ना, that is valid at 25 degrees Celsius for water only. ठीक है, if we are going to change something then it is going to change it. What is pH? तो ये मैं बता देता हूँ, pH is nothing but minus log activity of H plus ion. This is nothing but activity of or active mass, we can say, or active mass. है ना, for dilute solution. For dilute solution where H plus ion concentration is less than or equals to 0.1 molar. ठीक है, for dilute solution, concentration of H plus ion is less than or equals to 0.1 molar. Activity of H plus ion is equals to
concentration of H plus ion. But for concentration solution, concentrated solution, activity of H plus ion is not equals to concentration of H plus ion. In these cases, activity of H plus ion and calculated experimentally. ओके तो पहली बात तो ये समझ रहे हैं, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये समझ रहे हैं कि पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग एच प्लस आइन, बट यहाँ पे जो एच प्लस है वो एक्टिविटी है, और जनरली हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। इस पूरे चैप्टर में हम जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, वेयर द कंसंट्रेशन इज 0.1 और इक्वल्स टू 0 लेस देन और इक्वल्स टू 0.1, तो वहां पे हम एच प्लस, इस पूरे चैप्टर में हम कंसंट्रेशन ही डालने वाले हैं। बट एक छोटा सा पॉइंट है, वो हमें याद रखना है कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाएंगे, जैसे मान लो कहीं हमने 1 मोलर 2 मोलर HCl ले लिया है, 3 मोलर ले लिया है, तो वहां पे जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो, है ना, वो जो एक्टिविटी है, सॉरी नॉट कंसंट्रेशन, एक्टिविटी जो H प्लस आयन की है वो हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी कम आती है ना, कंसंट्रेशन से। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इन दोज केसेस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। Now, so this is common thing कि whenever we are saying pH equals to 7, then we are saying this pH equals to 7 means neutral solution. It is not true until unless I am not saying 25 degrees Celsius. It is based on, है ना, again the same thing, temperature. एक्टिविटी का मतलब होता क्या है? एक्टिविटी इज नथिंग बट, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में बोला था ना कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट, देखो जो हम लिख रहे हैं ना, जो भी हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, राइट, दैट इज हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, बट जब हम एक्सपेरिमेंटली देखने जाते हैं तो देयर इज सम वेरिएशन। तो जहां जहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, वहां वहां पे हमें कहना पड़ रहा है ये कंसंट्रेशन के बराबर नहीं है, एंड देन इट इज वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंटली, एंड दैट इज एक्टिविटी, एक्टिव मास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने क्या बोला था, एक्टिविटी कहाँ से रिलेटेड है, आप यू हैव टू गो लिटिल बिट बिहाइंड। आई हैव टोल्ड यू कि एक्टिविटी इज नथिंग बट, sorry, according to law of mass action, the rate of reaction depends on active mass, तो वहां से रिलेटेड है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखने जाएंगे तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, कैसे चेंज कर रहे हैं, वेरिएशन देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू से कि ये एक्टिव मास आ रहा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के बराबर ही होता है, तो फिर हम कह दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। Wherever when we are having a large deviation from the concentration, then we are saying we have to calculate experimentally. This is what I am saying. I hope this is clear. Yes, we will always assume alpha is going to be very small. Obviously, there would be some case which I will tell you कि कहाँ पे alpha small नहीं है, so मैं बताऊंगा। चलते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा pH स्केल के बारे में समझते हैं। So at 25 डिग्री सेल्सियस, 0 to 7, है ना, or we can say less than 7. So 0 to 7 it is going to be acidic, 7 is going to be neutral,
and 7 to 14 is going to be basic. Okay, but if we will change, temperature, pH scale will change. कैसे समझते हैं? तो H2O भी देखो ना, H2O भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेकिंग एज H+N OH- आयन. ठीक है, ये बात सही है ना. H2O भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है विच इज ब्रेकिंग इनटू H+N OH- आयन. राइट. सो व्हाट विल हैपन कि ये है ना. अच्छा, फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H is nothing but positive. This is endothermic reaction, breaking of water. है ना. Let's say for this reaction K equilibrium, what will happen for this reaction if we are going to increase the temperature? K equilibrium is going to increase or decrease? If reaction is endothermic, if we are increasing the temperature, K equilibrium will increase or decrease? So K equilibrium will increase. So as we are increasing temperature, K equilibrium will decrease. Sorry, increase, not decrease. Increase. K equilibrium will increase का मतलब क्या है? इसका जो equilibrium constant होता है, ठीक है, what is its equilibrium constant? थोड़ा equilibrium constant लिख लेते हैं. So what is let's say equilibrium constant? So I'm writing K dissociation constant KD of H2O is nothing but concentration of H+ ion divided by concentration of OH- ion divided by concentration of H2O. Now this concentration of H2O is going to remain constant क्योंकि water है ना, प्योर लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगी, है ना. जितने नंबर ऑफ आयंस टूटते जाएंगे उसके हिसाब से इफ यू आर गोइंग टू से वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. So what is going to happen is we can multiply over here H2O into dissociation constant of water. So concentration activity or concentration of H2O into KD of H2O, that is nothing but H+ and OH- ion. That is called as Kw, ionic product of water. Which is nothing but equals to 10⁻⁻14. ठीक है, फिर से सुनो, ये हमने ब्रेक कर लिया. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा? इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो वी कैन राइट H+ OH- डिवाइड बाय H2O. ठीक है, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया. सो H2O डॉट KD इंटू KD ऑफ H2O है ना, ये KD ऑफ H2O है, सॉरी दिस इज लाइक दिस. KD of H2O is nothing but H+ and OH-, which is in another constant. ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट लिखते हैं और इसको लिखते हैं Kw से, which is nothing but ionic product of water. और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो फॉर वाटर है ना, फॉर वाटर H+ ion concentration is equals to OH- ion concentration. So that's why we can say hence है ना, Kw is nothing but H+ OH-, which is nothing but H+ whole square. So 10⁻⁻14 equals to H+ whole square. So H+ ion concentration is nothing but 10⁻⁻7 for pure water. And pH is nothing but minus log H+, so which is nothing but 7. So that's how we are getting 7 as a enough for pure water. What is the pH? 7.
एंड व्हाट इज द स्केल? सो दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 0 to 7 एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Kw टेंड्स टू -14 आ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0 to 7 एसिडिक एंड 7 to 14 बेसिक, और pH इक्वल्स टू 7 है ना, इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब होगा क्या, नाउ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन Kw is going to increase, Kw is going to increase, तो बताओ टेंस टू आवर Kw -15 होगा या टेंस टू आवर -13 होगा इंक्रीज होने पे? मान लो विच इज गोइंग टू बी मोर, टेंस टू आवर -14 से बड़ा कौन है, टेंस टू आवर -15 और 13? टेंस टू आवर -13, तो at higher temperature टेंस टू आवर -13 is going to be Kw। तो अगर टेंस टू आवर -13 हो जाएगा तो pH स्केल कहां से आ जाएगी, 0 से 13 तक ही रह जाएगी। उसका मिड पॉइंट क्या है, 6.5, तो 6.5 क्या हो जाएगा, pH at 6.5 is going to be water। तो at, मान लो मैं बता दे रहा हूँ, at 80 डिग्री सेल्सियस द Kw is called as टेंस टू आवर -13, ठीक है, at 80 approximately at 80 degree Celsius। So at 80 degree Celsius pH equals to 6.5 is neutral and pH equals to 7 is going to be basic। समझ में आई बात? तो अब यहाँ लिख लेते हैं, तो we're writing a note, as we are increasing temperature, you know, Kw will increase, endothermic reaction, that's why at 80 degrees Celsius Kw is tends to our -13 and at I think 90 degrees Celsius Kw is called as tends to our -12, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू से, है ना, यहाँ पे याद रखना, अगर मैं मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कह दे रहा हूँ, लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस है या 1 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पे वाटर जस्ट वाटर है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे लेट्स से Kw इज गोइंग टू बी टेंस टू आवर -15 के आसपास, ठीक है। तो आपको स्केल याद रखना है। सो यहाँ पे pH स्केल क्या हो जाएगा, 0 to 13, pH स्केल यहाँ क्या हो जाएगा, 0 to 12। Let's say I'm writing at, let's say 1 degree Celsius, Kw is close to 10 to the -15, तो pH स्केल क्या हो जाएगा, 0 to 15। Now at 80 degrees Celsius pH equals to 6.5 is neutral। इतना समझ में आ रहा है कैसे, है ना? Kw is nothing but H plus whole square, है ना? So we are going to write this is 10 to the -13 equals to H plus whole square। तो we will calculate, है ना? So we will take minus log, so 13 equals to 2 pH, और pH is equals to 6.5, है ना? ये बैकग्राउंड मैंने बता दिया ये कैसे आया है, right? So pH equals to 6.5 is going to be neutral, and at let's say 1 degree Celsius pH equals to 7.5 will be neutral, hence pH equals to 7 will be over here is going to be basic, and here pH equals to 7 is going to be acidic। समझ में आया? 0 से नहीं चेंज होगी, will not change from 0। नहीं -1 to 12 क्यों लेंगे भाई, हमने पहले ही बोल दिया ना वो डाइल्यूट सॉल्यूशन तक के लिए वैलिड है।
तो मान लो वो कंसंट्रेशन मैक्सिमम वी आर सेइंग कि हम मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 1 तक, तो 1 में 0 मान लेंगे बस। है ना, इस वहां पे जहां मैंने 0.1 लिखा है ना डाइल्यूट सॉल्यूशन, वहां 1 मोलर लिख लो यहाँ पे, तो और क्लियर रहेगा। कहीं लिखा था ना एक्टिविटी वाला, दिस इज 1 मोलर नॉट 0.1। तो यहाँ से 0 आपको समझ में आ जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है, 1 मोलर। ओ एच प्लस स्क्वायर कैसे आया? ओ एच माइन वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए एच प्लस और ओ एच माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बराबर आएगी ना। यहाँ पे भी ये सी अल्फा आएगा, यहाँ पे भी ये सी अल्फा आएगा, दोनों की कंसेंट्रेशन बराबर होगी ना प्योर वाटर के लिए। वाटर में एसिड बेस डाल दोगे तब नहीं बोल रहा हूँ, केवल पानी है ना, और कुछ नहीं है, प्योर वाटर है विदाउट एनी सॉल्ट, मतलब जिसको बोलते हैं डी आयनाइज्ड वाटर, राइट। उसमें क्या होगा, उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे, उसका पीएच निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि पीएच स्केल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। सॉल्वेंट जैसे अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया के लिए KW अलग होगा, KW डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, KD सॉरी, KW इज आयनिक प्रोडक्ट। क्या ये नाम कैसे रखे गए हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ तो डिसोसिएशन रिएक्शन हो रही है वाटर की, इसलिए KD हो गया डिसोसिएशन। आयनिक प्रोडक्ट, यहाँ देखो आयंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो व्हेन वी विल गेट नेगेटिव पीएच, जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें या फिर डिफरेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट ले लें, डिफरेंट सॉल्वेंट नहीं, अगर हम कंसंट्रेशन ज्यादा ले लें तभी होगा। डिफरेंट सॉल्वेंट में भी वही 0 वाली लिमिट आ जाएगी जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। हाँ 14 से वो आगे और पीछे जा सकता है। तो मैं ये बोल रहा था जैसे अमोनिया हमने सॉल्वेंट ले लिया तो उसका आयनिक प्रोडक्ट अलग होगा, वहां पे H प्लस और NH2 माइनस आएगा, राइट, फॉर अमोनिया, राइट। So for that ionic product is going to be different. अभी हमने केवल टेम्परेचर चेंज किया क्योंकि हम केवल वाटर की बात करने वाले हैं इसलिए, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर हम सॉल्वेंट अलग ले लेंगे तो फिर क्या होगा। Y0 will be fixed क्योंकि 1 मोलर हमने वहां पे फिक्स किया हुआ है ना, दैट इज फ्रॉम 1 मोलर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जहाँ पे एक्टिविटी बराबर होती है कंसंट्रेशन के, इसलिए pH इक्वल्स टू 1 इज 0। लास्ट पार्ट सुनो फिर से एक बार। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे KW बढ़ रहा है, KW बढ़ गया तो जो पीएच स्केल अब क्या हुई 0, वो तो फिक्स है 1 मोलर के लिए, ठीक है। So what is going to happen is from 1 molar to that is can go to from pH equals to 0 to 13 तक जा सकता है, 10 to the minus 13 आएगी, राइट। मान लो ये यहाँ देखो KW is H प्लस और OH माइनस है, H प्लस अगर 1 हुआ तो pH क्या हो गया आपका 0, अगर OH माइनस 1 हुआ तो फिर यहाँ पे H प्लस कितना हो जाएगा, KW is 10 to the minus 13, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 to the minus 13। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है पीएच की 13 तक। ये बात समझ में आ रही है ना। हम तो पीएच ले रहे हैं ना, तो अगर ये 1 हुआ तो पीएच 0 हो गया, बट अगर ये 1 हुआ तो ये 10 to the minus 13 है, तो ये 13 हो गया, 10 to the minus 13 हो गया, तो पीएच क्या आ जाएगा 13। तो दैट्स व्हाई द रेंज व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट इज फ्रॉम 0 to 13।
अगर ऐसे ही ये चेंज हुआ तो टेस्ट हुआ -12 हो गया, अगर तो ये 0 to 12 हो जाएगा, टेस्ट हुआ -15 हो गया तो 0 to 15 हो जाएगा, लाइक दैट। क्या नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, पूछो। भाई कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही, पूछो ना, तभी तो पता चलेगा क्या पूछना है। वेदांत क्या दिक्कत है? फिर से सुन लो, अच्छा। हाँ, क्या एकदम, क्या दिक्कत है, बोलो। ये सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा लास्ट पार्ट। क्या लास्ट पार्ट का मतलब क्या है? वही नोट वाला। भाई ये बताओ, फिर से सुनो यहाँ पे, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक यस सर। है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉर एंडोथर्मिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से बता रही है बात। तो अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, है ना, राइट? यस सर। तो ये भी बढ़ेगा, KW। सर। दिस इनटू दिस, ये तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, KD बढ़ रहा है, तो KW बढ़ गया। यस सर। अब KW बढ़ा तो 10⁻13 हुआ या 15 हुआ? माइनस में है ना, तो 0.0000 ऐसे लिख रहे हो आप, तो एक जीरो कम हो जाएगा तो 10⁻13 हो जाएगा। तो अब KW की वैल्यू आ गई 10⁻13। हाँ ना? यस सर। मान लो एक टेम्परेचर है जिस पे 10⁻13 आई, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे एकदम KW जो है, राइट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहले लिखा था 1 × 10⁻4 14, फिर बढ़ा एक टेम्परेचर पे 2 × 10⁻14 हुआ, फिर एक बढ़ के ये जब पहुंचा 10 × 10⁻14, तो हमने लिख लिया 1 × 10⁻13। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, राइट। सो बाकी सारे वैल्यू लेंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हमने सिंपल वाली वैल्यू ले ली। तो मान लो एट 80 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 × 10⁻13। समझ में आ गया ये, यस और नो? मतलब अज्यूम कर रहे हैं ना। अरे ये होता है एक्सपेरिमेंटली, अभी तो पता है ये कि कैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन इज गोइंग टू बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो KW की वैल्यू बढ़ेगी ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। यस। तुमको यही बात नहीं समझ में आ रही शायद। हाँ ना, बताओ ना। आ रही है? सर आ तो रही है बट तुमने रिवाइज ही नहीं किया ये बात, इसलिए नहीं आ रही है। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, तो बढ़ तो रहा है, 1 2 ऐसे 3 ऐसे बढ़ता जाएगा कुछ कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब 10 × 10⁻14 हो जाएगा तो ये एट 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बस जैसे ही ये 10⁻13 हुआ, अब pH स्केल क्या हो जाएगी, 0 to 13 हो जाएगी। H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW, दैट इज 10⁻13, लेट्स से। तो जब ये 1 है, मतलब बहुत बेसिक कंडीशन है, तब ये OH-1 होगा, है ना। मान लो NaOH डाला हुआ है 1 मोलर, तो वहां पे H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻13 हो जाएगी। 10⁻13 होगी तो pH कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस यही तो कह रहा हूँ। यस सर समझा। तो स्केल 0 से 0 से 13 हो गई। मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 6.5 पे आएगा, वो जो भी स्केल है उसका मिड पॉइंट वो न्यूट्रल होगा। यस सर समझा। तो सिमिलरली वी आर सेइंग कि अगर मान लो टेम्परेचर घटाएंगे तो KW घटेगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस लिखा है, KW घट के 10⁻15 हो गया, उसका मिड पॉइंट 7.5 आ रहा है। pH 7 क्या हो जाएगा फिर, 7.5 पे न्यूट्रल है, 0 to 7.5 न्यूट्रल है, तो 7 क्या हो जाएगा, एसिडिक जोन में आ जाएगा, है ना। तो स्केल है ये 7.5 है, यहाँ ये एसिड लिखा हुआ है, यहाँ ये बेस लिखा है 15 तक। तो 7 कहाँ आ रहा है, एसिड वाले में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 से 13 है, 6.5 लिखा हुआ है, यहाँ एसिडिक है, यहाँ बेसिक है, तो 7 क्या आ जाएगा, बेसिक जोन में आ जाएगा। बस इतना ही तो बोल रहा हूँ मैं।
सौमिल क्या डाउट है? जीरो से इसलिए मैंने बोला ना 1 मोलर कंसेंट्रेशन, 1 मोलर का मतलब क्या होगा? माइनस लॉग 1 क्या होता है? 0 ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, नो नथिंग। जिनको देखना है दोबारा से लेक्चर नोट्स देखो, ठीक है, लेक्चर देखो, उससे तुम्हारा बढ़ेगा नॉलेज, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई ना भाई सबको? इसमें एक और बात है, देयर इज अनदर वन पॉइंट, you can write, which since we are writing kw is nothing but h plus n into oh minus ion, so we can take negative log, so minus log kw is going to be minus log h plus minus log oh minus, so this is going to be pkw is nothing but ph plus poh. So at 25 डिग्री सेल्सियस जनरली हम बस ये वाला ही यूज करेंगे 14 वाला, सो जनरली हमें यही यूज करना है, बट ये पता होना चाहिए जो ऊपर वाली बात है ना, कि पीएच स्केल चेंज हो सकता है, तो पीएच ऑफ वाटर भी चेंज हो जाएगा, दैट यू शुड नो। मोस्टली वी विल बी यूजिंग दिस ओनली, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 40। तो अगर कहीं पे आपको पीएच पता है देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज पीओएच, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकते हैं इसी में। किसी ने बोला कि लेट्स से अभी बताना ध्यान से सोच के, ओके। इफ वी आर सेइंग एट 25 डिग्री सेल्सियस पीओएच इज गोइंग टू बी 7 इज न्यूट्रल, है ना, पीएच 7 न्यूट्रल होगा तो पीओएच 7 भी न्यूट्रल होगा, राइट। तो एट 80 डिग्री सेल्सियस पीएच इक्वल्स टू पीओएच इक्वल्स टू 7 इज गोइंग टू बी pH equals to 7 at 80 degrees Celsius is going to be. So whenever you are getting any confusion, convert into pH, ज़्यादा better है. So pOH I said that is 7, ठीक है, pOH is 7 at 80 degrees Celsius, right? Let's say. So what will happen at 80 degrees Celsius? pH plus pOH is going to be 13. pH is going to be 6. बताओ pH equals to 6 क्या है? Acidic basic. 6.5 न्यूट्रल है, तो pH equals to 6 क्या होगा? Acidic. ठीक है, तो पहले आपने ये मैंने घुमा दिया था अभी क्वेश्चन, राइट। तो जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो पीओएच पीएच का, तो आप पीएच में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, एंड देन यू कैन चेक, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने 7 जब लिया था तो दैट केम बेसिक, तो पीएच 7 बेसिक होगा तो पीओएच 7 तो एसिडिक ही आएगा ना। कि पीएच टेम्परेचर के साथ केडब्ल्यू याद रखना पड़ेगा नहीं, ये दो ही बस हैं इंसिडेंट जो वहाँ पे कॉमनली पूछते हैं मेनली। आपको बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं कि मान लो वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पीएच ऑफ वाटर विल इंक्रीज डिक्रीज, पीएच ऑफ वाटर विल बताओ भाई, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर पीएच ऑफ वाटर विल इंक्रीज और डिक्रीज फास्ट। On increasing temperature, pH of water will increase or decrease. देखो ये सेम कह रहा है, बट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो केडब्ल्यू बढ़ रहा है, वाटर का वाटर मिड पॉइंट आता है ना स्केल का, तो डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज है ना। पहले 0 to 14 था तो 7 आया, अब 0 to 13 हो गया तो 6.5 आया, तो डिक्रीज हुआ ना 7 से 6.5।
समझ में आया जास्करन? मेरे को लग रहा है आज काफी टफ हो रहा है कंफ्यूजन। हाँ, सर बट वाटर का नेचर तो न्यूट्रल ही रहेगा ना। तो न्यूट्रली की डेफिनेशन चेंज हो गई ना, हाँ सर वही कि कंफ्यूज। 6.5 पे न्यूट्रल हो गया अब, ये सर समझा। है ना। यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने पहले बोला pH 7 हमेशा न्यूट्रल नहीं है। pH 7 और ये जो दो एग्जाम्पल लिखा है उसका रीजन ही यही है। यहाँ पे बिहेवियर चेंज है, यहाँ पे pH इक्वल्स टू 7 बेसिक है, यहाँ pH इक्वल्स टू 7 एसिडिक है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट्स इट। आई थिंक आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से। इतना थोड़ा रिवाइज करके आओ क्योंकि बहुत बाउंस होने लग जाएगा। इसको रिवाइज करके आना अच्छे से, ठीक है। बस आज ही अच्छे से समझा, मैं हर रोज समझाता हूँ अच्छे से। फिर से सुन लो भाई, पीएच वैल्यू जो है वो है -log H+, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब वो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, वो वाटर के लिए वो आपको डिपेंड करती है Kw पे। सो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, एक तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है ना, H+ आयन की कंसंट्रेशन इज नथिंग बट देयर इज अनदर फॉर्मूला व्हिच यू कैन राइट, दैट इज फॉर प्योर वाटर, है ना, याद रखना है, कहीं और के लिए नहीं, केवल प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। Right, for pure water, H+ ion concentration can be written as, that is, H+ ion की concentration can be written as √Kw, है ना, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। तो Kw का अंडर रूट ले लेंगे जहां जहां पे जो जो होगा, या फिर हम लिख सकते हैं pH ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ½ pKw, है ना, ये दो फॉर्मूले लिख लो। और ये दिस इज ओनली फॉर वाटर, फॉर प्योर वाटर। अब आप देखते जाओ, है ना, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, वाटर का पीएच कितना होगा, है ना, यहाँ लिखा था ना Kw इक्वल्स टू H+², तो H+ इज नथिंग बट √Kw। समझ में आया ध्वनि? और बाकी लोगों को जिनको पीएच में कंफ्यूजन हो रहा है, चलो ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, दैट्स इट, बाय। यस सौरभ। सर थर्मोडायनामिक्स का एक छोटा डाउट है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम्स एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये प्रोसेस एलोट्रोपिक चेंज कैसे हो सकती है? एलोट्रोपिक चेंज तो नहीं होगा। इधर 2 मिनट 27 नहीं होगा, मतलब एलोट्रोपिक चेंज होता क्या, मतलब वही एलोट्रोपिक चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे जनरली ये सॉलिड में देखने को मिलता है, तो जब हम थोड़ा सा समझते हैं कि सॉलिड में लिक्विड है तब तक तो कोई एटम्स का कोई अरेंजमेंट है नहीं, सब मूव कर रहे हैं, राइट, गैस में भी मूव कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर सेइंग सॉलिड, जब हम फ्रीज कर रहे हैं, है ना, जस्ट राइट, तो ये जो सॉलिड है उनकी पोजीशंस हैं, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन फिक्स है, राइट। सो लेट्स से लाइक दिस, and now this slightly has, let's say, arranged like this, अगर मान लो, so the change has happened, right, the structure has changed, है ना। यहाँ पे इसके लिए देखो ये 4 नेबर हैं केवल, राइट, और यहाँ पे इसके लिए कितने नेबर हो गए, 6 नेबर हो गए, राइट। सो यू कैन सी द अरेंजमेंट इज गोइंग टू चेंज। तो जब भी ऐसा होता है तो उसके कारण हम बोलते हैं उनका स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और फिर उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो जैसे कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट में यही हो रहा है ना, डायमंड में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ग्रेफाइट में कुछ ऐसा है, राइट। सो वी आर सेइंग एलोट्रोप्स। ऐसे ही आप देखोगे सल्फर के अल्फा बीटा, है ना, ये सब ऐसा ही है।
तो उसको Okay, sir. एलोट्रॉप बोलते हैं। तो जब भी H2 को अगर मान लो सॉलिड करेंगे और फिर H2 के ही दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे नाम देते हैं वो लोग अलग अलग, तो उनको एलोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, समझा? Okay, sir. Thank you.